स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello aspirants, my name is Divakar Bothra. In the last part, we did start with sociological theories. I explained you the importance of theories. I explained you the one important theory of sociology called as functionalism. आज उसी स्ट्रक्चरल अप्रोच से रिलेटेड एक और थियरी है जो है कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच. Although the theory is very broad, but this next 15 to 20 minutes would give you a very broad understanding and a crystal clear understanding of what exactly is the conflict approach. ये सारी PPTs, as I always say, is present in this Telegram. You can be a member of this, and it's freely available to all the to the entire community of civil servant aspirant students. So if you are interested, you can just join this Telegram channel. आज की डिस्कशन में we are going to discuss the conflict perspective. और उसके अंदर मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं? I'll briefly discuss the conflict theory, how conflict theory and functionalism are actually different. उसमें conflict theory में मार्क्स का क्या पर्सपेक्टिव है, नियो मार्क्सिस्ट लाइक ग्राम्स्की उनका क्या व्यू पॉइंट रहा और किस तरीके से वो मार्क्स से सिमिलर और डिसिमिलर दोनों है एट ए टाइम, और उसके बाद में राइट डैरेंड्रफ का पर्सपेक्टिव. बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन ऑफ टुडेज 9th of January we are starting our sociology batch 3. The timings of the class would be 1 and it may just look like an online class to you, but यहां पे the online class, in this online class जब आप अटेंड करोगे तो you will just feel like an offline session. क्यों? क्योंकि इन क्लासेस के अंदर almost every 15 minutes, last 15 to 20 minutes at the end of the class, we largely have a discussion with the students. Students को unmute किया जाता है and students अपने सारे doubts पूछ सकता है. और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर सारे डाउट एक ही 15 मिनट में तो कवर होंगे नहीं, तो हर फ्राइडे जो होता है हम पूरे 2.5 से 3 घंटे सिर्फ डाउट सेशंस लेते हैं, जहां पे आप चैट नहीं करोगे कि हमें पता चलेगा कि आपका क्या है, जिसमें 20-20 सेकंड का लैग होता है. आप डायरेक्टली अपने आप को अनम्यूट करोगे, वीडियो ऑन करना है तो वीडियो ऑन करोगे और उसके बेसिस पे अपने जो भी रेलेवेंट डाउट उस क्लास से है या प्रीवियस क्लास से है या फिर कोई और किसी एस्पेक्ट से यूपीएससी की तैयारी के, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो. सो you will never feel this is an online class because the interaction is so smooth here. Normally एक fear रहती है कि कैसे interact करेंगे, कैसे नहीं करेंगे. This is a completely two-way interactive sessions. So if you are interested in taking your sociology to the next level, and if you are really targeting 2023 and more specifically 2024, then this is the batch you should definitely see for. The fees is almost so minimal that I bet nobody else is doing optional at this price, including any organizations offline or online. And even at offline, the entire syllabus is not covered despite paying a huge amount of 50, 60, 70 thousands. Here every subtopic would be covered, and even if a single subtopic is left in your syllabus, then personally Divakar Bothra would refund your entire fees. No questions asked. I am taking the responsibilities. If not study IQ, I'll personally do that from my personal account balances. So when I am so confident about the teaching, handwritten notes, answer writing, standard answers, discussions, doubt clearing sessions, interactions and meetups, everything is actually a part of it. So if you're interested in understanding sociology, taking sociology and learning sociology from the perspective जहां पे सिर्फ पढ़ा नहीं है, लिखना भी आता है sociological, चाहे किसी भी चीज की sociology पूछ ली जाए, then this is the batch. The demo lectures and others are available in my playlist. Once you see the lecture, you will understand the way we teach sociology here by connecting it to our day-to-day aspects and our understanding. So let's start with the today's session. The conflict perspective largely came when the functionalism was dominating. Conflict perspective largely gives prominence to conflict, as the word clearly the conflict indicates. इससे पहले जो conflict की understanding थी, जब functionalism था, तो ये माना जाता था कि conflict is a deviant act.
और या तो उसे पनिश किया जाना चाहिए और धीरे धीरे ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएगी सोसाइटी के अंदर. कॉन्फ्लिक्ट वाज नॉट कंसीडर्ड एज गुड, इट वाज कंसीडर्ड एज अ deviant act. But Hegel, through his dialectical approach in philosophy and political science, and Marx, through his dialectical materialism to a very greater extent in sociology, made us understand the importance of conflict perspective and how conflict is not bad in society. Conflict is required in society, as it is because of the conflict things changes. Take an example. किसी भी चीज के ऊपर अगर सारे लोगों का एक ही मत है तो वो सोसाइटी कभी चेंज नहीं होने वाली है, बिकॉज जो प्रथा चल रही है, जो सिस्टम चल रहा है, जो प्रैक्टिस चल रहा है, इट वुड लार्जली नेवर चेंज. टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पर्सन स्मोकिंग. अगर उसके पूरे परिवार में अगर सब स्मोक करते हैं तो शायद वो स्मोकिंग हैबिट कभी जाएगा ही नहीं. लेकिन सपोज उसी फैमिली के अंदर इफ अ पर्सन इज स्मोकिंग एंड अदर्स आर नॉट स्मोकिंग, और वो कॉन्स्टेंटली उन्हें टोकते रहते हैं कि स्मोकिंग छोड़ दो, स्मोकिंग ऐसे है, स्मोकिंग वैसे है, या फिर पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऐसे है, चाहे वो स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, पढ़ने से रिलेटेड हो, जब ये कॉन्फ्लिक्ट आती है सिस्टम में तो टेंशन आता है. और जब टेंशन आता है तभी जाके शायद नई चीजें फॉर्म हो सकती है. So conflict perspective overall made us understand how conflict plays an important role in bringing change in the system, bringing new ideologies in the system, and how this conflict contributes to the change in society. क्योंकि अगर conflict है ही नहीं तो शायद acceptance होता है system का, और वो जब acceptance होता है तो system में status quo रहता है, order present रहता है, which hampers change, which hampers adaptation in the society itself. अब लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के अंदर बहुत सारे मत है. कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के नीचे जो स्कॉलर्स मैंने लिखे थे, मार्क्स, नियो मार्क्सिस्ट, रैल्फ डैरेनड्रफ, सब लोग मानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इंपॉर्टेंट होती है सोसाइटी में. लेकिन सवाल ये आता है कि कौन सी कॉन्फ्लिक्ट इंपॉर्टेंट है, विच level the conflict exists and what nature of conflict is more important. Marx advocates conflict at the level of economics is the most important aspect. Only the conflict present at the level of economics largely carries the capacity to bring change in society. All other conflicts does not matter. तो मार्क्स के हिसाब से इकोनॉमिक लेवल की ही कॉन्फ्लिक्ट, FOP, ROP, इंफ्रास्ट्रक्चर, मोड्स ऑफ प्रोडक्शंस, द डिटेल्स which we'll do someday in Marx, और मार्क्स का ऑलरेडी मेरा एक लेक्चर पूरा कंप्लीट मार्क्स अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, यू कैन गो एंड हैव अ लुक. शॉर्ट में अगर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में देखें तो मार्क्स बोलते हैं इकोनॉमिक लेवल की कॉन्फ्लिक्ट ही सोसाइटी चेंज कर सकती है या चेंज ला सकती है, बाकी कॉन्फ्लिक्ट में वो कैपेसिटीज नहीं है. तो मार्क्सियन नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज लार्जली वेयर कि कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमिक्स में होता है और उसी के बेसिस पे चेंज आता है. और अगर हम देखें मार्क्स के बाद में नियो मार्क्सिस्ट आए. नियो मार्क्सिस्ट और मार्क्स में सिमिलैरिटी क्या है? नियो मार्क्सिस्ट एक्सेप्ट द एंटायर थियरी ऑफ कार्ल मार्क्स, पूरी की पूरी मार्क्स की थियरी ये एक्सेप्ट करते हैं. न्यू मार्क्सिस्ट बट मार्क्स से एक जगह डिफरेंस रखते हैं, क्या और कहा? मार्क्स बोलते हैं कि कैपिटलिज्म में जो प्रोलिटेरिएट रेवोल्यूशन होगी ना, वर्कर्स रेवोल्यूशन, वो ऑटोमेटिकली जो कैपिटलिज्म के कंडीशंस है उसके बेसिस में ऑटोमेटिकली वर्कर्स में कॉन्शियसनेस आ जाएगी और वो रेबल कर जाएंगे, रेवोल्यूशन ले आएंगे और सोसाइटी कम्युनिज्म की तरफ बढ़ जाएगी थ्रू अ ट्रांजिस्टरी स्टेज ऑफ सोशलिज्म. नियो मार्क्सिस्ट ये नहीं एक्सेप्ट करते. नियो मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि वर्कर्स में ऑटोमेटिकली कॉन्शियसनेस नहीं आएगी. क्यों? जो कैपिटलिज्म है उसके अंदर जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत हद तक हिडन हो चुकी है. एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर कहीं पे काम करते हो, MNCs या कुछ और, या फिर जनरली आपने देखा है आपको बहुत अच्छे से टारगेट दिए जाते हैं, आपको एक्सप्लॉइट इन द सेंस कोई स्लेव के जैसे एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा है, बट इन अ वे आप स्लेव ही हो. कैसे? टारगेट होते हैं, कांस्टेंट वर्क के ऊपर स्ट्रेस किया जाता है और आपको उस स्ट्रेस से हटाने के लिए क्या किया जाता है? मैकडॉनल्ड्स जाओ, एम्प्लॉय ऑफ द डे, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, पॉश हॉलिडे पैकेजेस दिए जाते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जाते हैं. तो कहीं ना कहीं वो जो एक्सप्लॉयटेशन है वो हिडन हो जाते हैं. और इधर एक हर्बर्ट मार्क्यूज का बहुत अच्छा स्टेटमेंट याद आ रहा है, दैट इज हर्बर्ट मार्क्यूज बोलते हैं कि मॉडर्न कैपिटलिज्म के अंदर एक्सप्लॉयटेशन हिडन है. और द मार्क्यूज सेज दिस दैट द कैपिटलिज्म हैज कन्वर्टेड द चेन्स ऑफ
आयरन टू चेन्स ऑफ गोल्ड। वो जो सोने की हथकड़ी थी ना, उसको लोहे की हथकड़ी, उसे सोने की हथकड़ी बना दी है। और क्योंकि वो हथकड़ी सोने की है तो लोगों को उस हथकड़ी में भी मजा आने लगा है। कहना क्या चाह रहे हैं मार्क्यूस कि किस तरीके से लोगों को ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, या तो उन्हें अंदाजा नहीं है, और कई लोग उस एक्सप्लॉयटेशन को एंजॉय करने लगे हैं क्योंकि उस एक्सप्लॉयटेशन के पीछे क्या है, हॉलीडेज है, इंश्योरेंसेस है, बेनिफिट्स है, हाउसिंग बेनिफिट्स है। ये सारी चीजें देखने के कारण लोगों को लगता है कि नाउ दे आर इन अ बेटर प्लेस। तो नियो मार्क्सिस्ट सेज कि जो प्रोलिटेरिएट की रेवोल्यूशन है वो ऑटोमेटिकली नहीं आने वाली है, आपको एक नई सोच देनी पड़ेगी, आइडियोलॉजी देनी पड़ेगी प्रोलिटेरियट्स को। क्यों? क्योंकि अभी उनकी सोच ऐसी है कि वो एक्सप्लॉइटेड ही नहीं है, वो मेहनत कर रहे हैं, उन्हें बेनिफिट्स मिल रहे हैं। रियलिटी में क्या होता है कि आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई और वो सैलरी से आपने एक टीवी खरीदा, एक फोन खरीदा, तो टेक्निकली वो पूरा का पूरा पैसा कैपिटलिज्म में चला गया। तो ऑल द नियो मार्क्सिस्ट एडवोकेट दैट एक अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी देनी पड़ेगी नींद से जगाने के लिए प्रोलिटेरियट्स को, तब ही जाके प्रोलिटेरिएट रेवोल्यूशन आएगी। तो बहुत अच्छे से समझना, ये डिफरेंस बहुत मेजॉरिटी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि नियो मार्क्सिस्ट और मार्क्सिस्ट में डिफरेंस क्या है। सारी चीजें सेम है, सिर्फ प्रोलिटेरिएट रेवोल्यूशन कैसे आएगी उधर डिफरेंट हो जाते हैं नियो मार्क्सिस्ट। अब मार्क्सिस्ट और नियो मार्क्सिस्ट दोनों इकोनॉमिक्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन नियो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं व्हेन कंपेयर टू इकोनॉमिक्स। अब ग्राम्स्की वाज अ नियो मार्क्सिस्ट, जो मैंने एक्सप्लेन किया, अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी। एक और साहब आते हैं जो है रैल्फ डेरेनड्रॉफ। रैल्फ डेरेनड्रॉफ भी कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच से बिलोंग करते हैं और वो बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक नियो मार्क्सिस्ट एंड मार्क्सिस्ट, ही आल्सो सेज कॉन्फ्लिक्ट इज रियली इंपॉर्टेंट सोसाइटी, क्योंकि यही चेंज लाके दे सकती है आपको। लेकिन ये मार्क्स नियो मार्क्सिस्ट से वेरिएशंस रखते हैं। कैसे? वो दोनों कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स को देखते हैं। रैल्फ डेरेनड्रॉफ बोलते हैं कि आज का जो टाइम है 20th सेंचुरी कैपिटलिज्म, आज का मतलब, क्योंकि मार्क्स डेरेनड्रॉफ के टाइम में 20th सेंचुरी ही चल रही थी। 20th सेंचुरी कैपिटलिज्म के अंदर इकोनॉमिक्स की कॉन्फ्लिक्ट में वो कैपेसिटी नहीं है कि सोसाइटी चेंज करे, क्योंकि जो रियल पावर है मार्क्स के टाइम में हो सकता है कैपिटलिस्ट के पास रहा था 19वीं सदी में, लेकिन 20वीं सदी में जो रियल पावर है वो पॉलिटिकल क्लास के पास होता है। तो रैल्फ डेरेनड्रॉफ टॉक्स अबाउट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, अथॉरिटी के लेवल पे है कॉन्फ्लिक्ट, एंड दोस पीपल हु आर हैविंग द अथॉरिटी, who are having the positions of power, there the conflict which is present that will bring change. तो फॉर एग्जाम्पल बीजेपी और आईएनसी के बीच की कॉन्फ्लिक्ट शायद देश में चेंज ला सकती है। अंबानीज और अडानीज की कॉन्फ्लिक्ट में कैपेसिटी नहीं है चेंज करे, अकॉर्डिंग टू रैल्फ डेरेनड्रॉफ्स पर्सपेक्टिव। लेकिन ये ऐसा क्यों मानते हैं कि कैपिटलिज्म या इकोनॉमिक्स में वो कैपेसिटी नहीं है? क्योंकि ये बोलते हैं कि 20वीं सदी के कैपिटलिज्म में जो क्लासेस है कैपिटलिज्म में वो डिकम्पोज हो गई है। कि भाई साहब पहले 19वीं सदी में एक ही ओनर हुआ करता था जिसका पूरा ओनरशिप था। आज जॉइंट स्टॉक कंपनी के मॉडल्स हैं, शेयर्स बहुत वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये ओनर्स इतने डिवाइडेड हो चुके हैं कि ओनर्स में यूनिटी नहीं है, तो ये कैसे कॉन्फ्लिक्ट से इन्फ्लुएंस करेंगे? वर्कर्स को देखो तो डिकम्पोजिशन ऑफ लेबर भी हो चुका है। वर्कर्स स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, पार्टली स्किल्ड, XYZ, व्हाइट कॉलर, गोल्ड कॉलर, ब्लू कॉलर, पिंक कॉलर, इतने डिविजन्स है कि न तो वर्कर्स यूनाइटेड है न ओनर्स यूनाइटेड है। तो कॉन्फ्लिक्ट इतनी डिकम्पोज हो गई है इकोनॉमिक लेवल पे दैट इट कैन नॉट influence the society or cannot guide the social change. Therefore, this conflict school gives importance to conflict. दिस कॉन्फ्लिक्ट स्कूल के अंदर कोई सिंगल मत नहीं है। कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को इंपॉर्टेंस देता है, कोई आइडियोलॉजी को इंपॉर्टेंस देता है, कोई इकोनॉमिक्स को इंपॉर्टेंस दे रहा है। एक और पार्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट स्कूल का जो है फेमिनिस्ट या फेमिनिज्म। फेमिनिस्ट मानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट न तो इकोनॉमिक में है, न पॉलिटिक में है, न आइडियोलॉजी में है। कॉन्फ्लिक्ट जेंडर की ही है सोसाइटी में। जेंडर कॉन्फ्लिक्ट ही सोसाइटी का प्रोग्रेस या डिकम्पोज व्हाट यू कॉल्ड एज डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी डिटरमाइन करता है। बट सब कॉन्फ्लिक्ट स्कूल में एक चीज कॉमन है, ये मानते हैं कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहती है सोसाइटी में, एंड कॉन्फ्लिक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी
society, and the nature of conflict determines the nature, the character and the changes and the speed of change present in society. अब क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में फंक्शनलिज्म देखा और इस लेक्चर में हमने कॉन्फ्लिक्ट देखा, दोनों के कंपैरिजन में क्या रहता है, क्या मेजर ब्रॉड डिफरेंस है? हालांकि बहुत सारा डिफरेंसेस है, मैंने जस्ट समराइज में एक एसेंस लिखा है इधर कि जो कॉन्फ्लिक्ट स्कूल है वो पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट पे स्ट्रेस करती है, सोशल चेंज के ऊपर फोकस्ड है। लेकिन हम फंक्शनलिज्म देखें तो वो कॉन्सेंसस पे स्ट्रेस करता है, कि ऑर्डर पे स्ट्रेस करता है और कॉन्फ्लिक्ट को नेगेटिव मान के चलता है। ये मानते हैं ऑर्डर सोसाइटी में टेम्पररी है, ये मानते हैं कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में टेम्पररी है। सो दिस वाज ओवरऑल द कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच प्रेजेंट इन सोशियोलॉजी, जहां पे 3 मेजर स्कॉलर मैंने आपको समराइज्ड फॉर्म में समझाया है, सो दैट यू नॉट ओनली गेट एन अंडरस्टैंडिंग बट ऑल्सो गेट एन आइडिया हाउ वी टीच सोशियोलॉजी इन स्टडी IQ और एट स्टडी IQ। बैच 3 आई एम रिपीटिंग 9 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। The fees is less than your 4 months tiffin fees in old Rajendra Nagar, and I promise you nobody is going to cover the entire syllabus even at 60,000. Take my word, if anybody does, I'll give you the course for free. And this largely further reduces if you use the code DEVLIVE. So if you really want to take your sociology to next level, I only say things which I can do. If you really want to take this sociology to the next level, then this batch is the place where you need to be. 2024 के लिए अगर सही से तैयारी करनी है, then this is the batch you should vouch for. Thank you so much. Have a nice day. Happy studying. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।